My name is Ketan. 30 days to CAT. I remember I started journey with 8 months to CAT and 9 months to CAT, 7, 6 and all that. And now we're at 30 days to CAT. Fine. In this video we'll talk about the quick strategy. करना क्या है next 30 days. आपका थोड़ा plan of action क्या होना चाहिए. It's definitely it has to be थोड़ा सा different than what we have done till now. Prep strategy के बारे में बात करेंगे 30 days के लिए. एक target आपको रखना पड़ेगा अगले 30 डेज के लिए और वो आपको अचीव करना जरूरी है. सो इन दिस वीडियो गाइस स्टिक अराउंड. आई विल बी हेल्पिंग यू विद अंडरस्टैंडिंग हाउ कैन विद ए स्मॉल सॉर्ट ऑफ अ लेवल ऑफ प्रिपरेशन आप एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो. अगेन इट्स नॉट अ क्लिकबेट, इट्स नॉट अ फेक मोटिवेशन, इट्स गोइंग टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? सो स्टिक टू द वीडियो टिल द एंड. यू विल बी वेरी मच क्लियर अबाउट कि अगले 30 डेज में करना क्या है. पहली बात, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, लेट्स टॉक अबाउट वेदर यू विल बी एबल टू डू इट और नॉट, राइट? तो यार सिंपल सी बात है, पास्ट इज कंप्लीटली गॉन. इट्स ऑल अबाउट व्हाट यू कैन डू राइट फ्रॉम नाउ, राइट? बहुत सारे बच्चे I mean, I'll tell you the story. 99 percentile हो या फिर 70 हो, 80 percentile हो, everybody has this question in their mind कि यार अभी क्या कर सकता हूँ. And you know what? अभी क्या होगा ना guys? अभी whatever things that we could not do very well, right? Maybe in the month of June, July, August, September, October, whatsoever, these things will start haunting you, and it happens with every student. It might be an IITian, NITian, SRCC, Symbiosis, Loyola. You might be from any background. कितने भी आप टैलेंटेड रहो भाई, ये चीज़ें आपको हॉन्ट करेगी. बिकॉज वी हैड गॉन थ्रू दिस इवन ड्यूरिंग आवर MBAs. हमें हॉन्ट करता था कि यार शायद से ये प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक से कर लेता, शायद से ये रेज्यूमे पे थोड़ा सा मैं अपना काम कर लेता. सो ये ऑलवेज हॉन्ट करती है. आई एम अहमदाबाद जाने वाला बच्चा हो या नारसी मुंजे वाला बच्चा हो या फिर मान लो JB हो, KJ हो, कुछ भी हो, वेलिंगर भी हो, इट इज ऑलवेज गोना हॉन्ट यू, राइट? सो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी इग्नोर करनी है, राइट? एंड अगेन ये पॉसिबल है. आई विल शो यू वेरी क्विक थिंग, राइट? I had this 99 percentile का session yesterday with my kids at C2C Mentors. So this is Kaivalya. Kaivalya is basically in IIM Ahmedabad. He is a 99.93 percentile. मैं इसका always example देते रहता हूँ because he is an inspiration to a lot of students out there. 20 percentile से इसने jump करा था 99.93 percentile. और ये 20 percentile Kaivalya को आया था one of the mock once मेरे ख्याल से during the month of October. So यहाँ से he could move ahead, right? Then there is another student of C2C Mentors. Her name is Simran. This is Simran. Simran is currently in FMS. She's from NIT Jaipur. She scored 99.17 percentile. Her lowest in the mock was round about 82 percentile. From 82 percentile, she could nail right 99.17 percentile. So ये possible है. And Simran का जो अगर आप देखोगे lowest जो score है वो basically था verbal में, VRs में, where she could only manage to get round about 30 का score, 33 का score, round about 10 to 11 questions she got correct and she got 94 percentile. So it's possible, right? See, all the 99 percentilers or maybe all the 95, 96th percentiler, all you guys now you're going through a lot of turbulence, or if you might be going through a lot of things, right? And even maybe you're at a 80 percentile or maybe 90 percentile, आपको you have no idea कि यार मैं 99 पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा. But यार एक journey है, you cannot be really sure कि मैं कर ही पाऊंगा 99 या फिर नहीं. But I always tell you, right? Be in the game. जितने भी ये बच्चे हैं, जितने भी हमारे 99 परसेंटाइल, आप किसी भी 99 परसेंटाइल से बात करो, वो आपको यही कहेंगे कि यार पता ही नहीं था कि 99 आएगा. D-Day पे जाके जब पेपर दिया तब पता चला 99 आएगा. There were students last year, they used to score 70, 80s in their mocks. और इंस्टीट्यूशंस का D-Day पे अच्छा खासा काम हो गया, 93, 94 परसेंटाइल आ गया, 95 के ऊपर भी वो चले गए, राइट? सो आप IIT हो, NITian हो, whatever you are, you will have these things haunting you. Ignore मारो, right? It's not about could have done, should have done, your main focus should be अगला 30 days में क्या कर सकता हूँ, period. मुझे ये नहीं देखना कि यार शायद से मैं ये कर सकता था, ये हो सकता था. fuck that bullshit, ये काम नहीं करने वाला है, हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं करना है. It's all about next 30 days. You know what? यहाँ पे आके गड़बड़ हो जाती है, यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे डाउन हो जाते हैं और यहाँ पे आके बहुत सारे बच्चे गियर अप करते हैं, अपना प्रिपरेशन को एक्सेलरेट कर लेते हैं. एंड दीज गाइज हैव इनक्रेडिबल रिजल्ट्स. गाइज आपने 5-6-7 महीना जो भी मेहनत किया, नाउ इज अ टाइम कि आप अपनी मेहनत को थोड़ा एक्सेलरेट करो, पीछे मत जाना. ये 30 डेज बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे चलेंगे. What you know is enough for CAT. मैं ऑलवेज बच्चों को कहता हूँ, इट इज़ नॉट अबाउट नोइंग एवरीथिंग कि मुझे मॉडर्न मैथ्स में आना चाहिए, नंबर्स में आना चाहिए. तुझे जितना भी पता है ना, तो उतना भी कर सकता है. यू नो व्हाट आई टेल यू, इफ यू जस्ट नो अरिथमेटिक, if you just know arithmetic very well, with respect to arithmetic, there are going to be around about 8 to 10 questions, that's for sure. arithmetic से भी बच्चा अपना quant फोड़ सकता है. Last time we had a guy Gavrav, ये बंदे ने 8 क्वेश्चन करा, 92 परसेंटाइल ये बंदा लेके आया. We had students last year who could do only 8 questions in DLR and could get around about 95 percentile. So it is all about whatever you know for CAT, it will help you
DI में अगर आपको 2-3 टॉपिक आते हैं, अगर आपको अरिथमेटिक थोड़ा सा आता है, अलजेब्रा थोड़ा आता है, ज्योमेट्री थोड़ा आता है, इट विल बिल्ड योर रिजल्ट्स। अगर आप चाहते हो आप पुराना कैट का पेपर जाके देखो, आपको पता चलेगा कि यार पूरा करने का जरूरत है नहीं। जितनी चीज़ें मुझे आती है आज भी, इवन इफ टुडे आफ्टर दिस वीडियो यू सिट डाउन विद कैट 2019 18 17 का पेपर, यू विल कम टू नो दैट कि यार ये मैं कर सकता हूँ। मॉक्स आर ऑलवेज डिसअपॉइंटिंग, आई एम ऑलवेज टेलिंग यू, मॉक्स और एक्चुअल कैट के पेपर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो वो जो मॉक का जो स्कोर है उसको दिल पे मत लेना। इफ यू आर डूइंग गुड इन मॉक्स, एब्सोल्युटली फाइन, यू विल इंप्रूव फ्रॉम 90 to 95, फ्रॉम 95 to 99 एंड प्रॉब्ली फ्रॉम 99 से लेके 99.50 ऑल्सो, विच इज द टॉपर्स वाला क्लब। सो ऑलवेज रिमेंबर, मॉक्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी डिसअपॉइंटिंग, इवेंचुअली थोड़ा थोड़ा मॉक में स्कोर आपको दिखेगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस, कैट इज नॉट अबाउट 100%, जैसे हम अपने ग्रेजुएशन में करते थे या फिर हम 10th 12th में करते थे बोर्ड एग्जाम के लिए कि यार मुझे 100% पढ़ना है एंड मुझे सब चीज़ें करनी है। बिल्कुल भी नहीं, यू वुड नीड राउंड अबाउट 30% का पेपर। सी इफ यू सॉल्व 30% ऑफ द पेपर, यू आर गेटिंग 90% L प्लस प्लस। विद 45% ऑफ द पेपर यू आर 99% एलर। तो कैट का ना ये बहुत सेक्सी पार्ट है जहाँ पे CAT is not all about 100%. They don't have to do 100%. Even the 100 percentiler will not do 100% of the paper. Even they will do round about 70 to 75% of the paper. तो ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बात करता हूँ 85th percentile के बारे में, guys, that's just about 25% of the paper. And for 99, that's round about 45 से लेके 50% of the paper. अगर पेपर बहुत ईजी आया तो 50% करना पड़ेगा। अगर सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी रहा 19-20 का, 45% पे you are 99% एलर, as simple as that. Even if you attempt 50% of the paper and you have round about 90% of the accuracy or 80% of the accuracy, you are still gunning for 99, 98.70 से लेके 99, 99.10, ये आपका फाइनल स्कोर हो सकता है। So always remember that. Now this is a brilliant point that you need to understand. ये मैंने prediction लास्ट ईयर भी करा था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं ऑलवेज बच्चों को इन द मंथ ऑफ अक्टूबर कहता हूँ, रादर नवंबर में कहता हूँ कि भाई मेरे one bloody question can take you close to 5% time। हाँ, ये चीज अपने दिमाग में डालना। ये मॉक में पॉसिबल है क्या? एब्सोल्युटली नो। हाँ, ये मॉक में पॉसिबल होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो वन क्वेश्चन कैन गिव यू राउंड अबाउट 2.5 से 3%। अगर पेपर ज्यादा डिफिकल्ट हुआ तो 5%। ये DI में एक्चुअली शॉर्ट काम करता है। वन क्वेश्चन इज इक्वल टू 5% इन DLR। क्वांट्स में राउंड अबाउट 1.5 से लेके 2 क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 5%। ये चीज़ जानना बहुत जरूरी है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे आर लाइक नो टेंशन में है कि सर मेरा 90 नहीं आ रहा, मेरा 95 नहीं आ रहा, मैं 95 से 99 की जो भी डेल्टा है वो अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सब कुछ कर बैठा हूँ बट यार सर पता नहीं चल रहा वो 95 से मैं 99 कैसे जा सकता हूँ, या फिर मैं 85 से 90 से 95 जंप कैसे कर सकता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर, आप जहाँ पे भी अभी हो, 90 हो 95 हो, तुम्हारे बीच में और एक 99 वाले के बीच में, आप दोनों के बीच में द डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज ओनली 4 to 5 और मैक्स 6 to 7 क्वेश्चंस, उससे ज्यादा नहीं है। सो यू आर वेरी क्लोज, यू आर वेरी क्लोज एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ कैट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ कैट। अब देखने के लिए ये 4 से 5 बहुत कम है, पर यहाँ पे एक्यूरेसी का गेम है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। So ये मत सोचना कि आई एम completely out of the game. If you are at 80 percentile right now, you can still move ahead with 90-95 percentile, provided you should do the things that I'm telling you, जो CAT के लिए बहुत ज़्यादा important है। Actually, at the end of the day, guys, you need to know what percentile you would need for IIMs। बहुत सारे बच्चे जो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, जो ओपन कैटेगरी होते हैं, पर उनको जेंडर डाइवर्सिटी है, उनको एकेडमिक डाइवर्सिटी है, अब हम इन बारे में कभी सोचते नहीं है। हमको कभी नहीं लगता कि यार मेरा भी IIM अहमदाबाद हो सकता है। बिकॉज सी, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक बच्चे को 90 परसेंटाइल पे IIM अहमदाबाद का कॉल आएगा, बट डेफिनेटली अगर आप नॉन इंजीनियर हो, अगर आप फैशन डिजाइनर काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड से हो, ह्यूमैनिटीज काइंड ऑफ अ बैकग्राउंड से हो, तो यार इवन 85 परसेंटाइल इज अ गुड नंबर टू फेच अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद, टू फेच अ कॉल फ्रॉम IIM अहमदाबाद, राइट। कन्वर्ट के लिए चाहे तो यार हमारी एक स्टूडेंट है 88 परसेंटाइल पे आज IIM अहमदाबाद में बैठी है, राइट। शी हैज कन्वर्टेड IIM अहमदाबाद एट 88 परसेंटाइल, शी इज अ फैशन डिजाइनर। मैं ऑलवेज इनका एग्जांपल आपको देते रहता हूँ सो दैट यू गेट मोटिवेटेड, राइट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर स्टूडेंट। We have another student, she is in IIM Bangalore at 95 percentile. Definitely इनका जो प्रोफाइल था तो थोड़ा बहुत अच्छा था, she hails from SRCC, no doubt about it, but अगर तुम्हारा प्रोफाइल बहुत अच्छा है, you can still make it to ABC, KIL, probably FMS and SPJs also, MDI Gurgaon also, right? This is what you need to understand. तो कहीं ना कहीं जो पुरानी मेहनत है 10th 12th ग्रेजुएशन की, उसको भूलना बिल्कुल भी नहीं है, वो अपने साथ रखो, वो तुमको पुश देगा, दैट इज फॉर श्योर। 95 परसेंटाइल में फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नहीं आया था, सेकंड मेरिट लिस्ट में आया था, बट द पॉइंट इज आया था। वी हैव अ स्टूडेंट हु गॉट इनटू
and Kozhikode at round about 93 percentile. We have these are all open category by the way. We have a student who got into MDI Gurgaon at 94 percentile. हाँ at 94 percentile. So ये चीजें जानना बहुत जरूरी है आपके लिए. If you're a category student, 80 percentile plus is going to be a good number. I have an SC student who is sitting in IIM Ahmedabad at 80 percentile. I have a PWD student who is sitting at IIM Calcutta at 78 percentile. So you need to understand कि आप भले बहुत ज़्यादा बड़े competition पे हो, but you need to understand तुम्हारा basket कौन सा है, जहाँ पे तुम बच्चों के साथ compete करने वाले हो. So SC guy is competing with the SC guy. OBC guy is competing with the OBC guy. So this is exactly what you need to understand. Because जब हम ये चीज़ें भूल जाते हैं ना, हम प्रेशर में आ जाते हैं, हम पैनिक मोड में आ जाते हैं, which I don't want things to happen to you. तो अगला 30 दिन आपको इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा. भले आप कैटेगरी के बच्चे हो, I definitely want you to prepare like an open candidate का बच्चा लो, but every day is not Sunday. Okay, every day is not Sunday. कभी कभी डिमोटिवेशन आता है, तो ये चीजें तुमको हेल्प करेगी, तुम्हारी प्रोफाइल तुमको हेल्प करेगी. इवन इफ यू आर अ जेम, राइट, योर प्रोफाइल विल हेल्प यू. इवन इफ यू आर मे बी यू हैव अ जेंडर डाइवर्सिटी, यू आर अ गर्ल एंड यू गॉट गुड एकेडमिक्स एंड यू गॉट फैशन डिजाइनिंग और ह्यूमैनिटीज वाला बैकग्राउंड, ये चीजें तुमको मोटिवेट करेगी. इसमें ध्यान रखना. आगे चलेंगे, इट इज नॉट अबाउट परसेंटेज ऑफ द पेपर, इट इज ऑल अबाउट परसेंटाइल. आपको कितना परसेंटाइल, क्या स्कोर पे आएगा, ये देखना बहुत जरूरी है. इफ आई वर टू टेल यू दी मैट्रिक्स, अगर मैं बात करूं 65 का स्कोर पे, लास्ट ईयर यू हैड 90 परसेंटाइल, दैट्स राउंड अबाउट 28% ऑफ द पेपर. अगर मैं मोटा मोटी बात करूं, लास्ट ईयर राउंड अबाउट तुम्हारा 228 का स्कोर था, पूरा का पूरा स्कोर, राइट. इसके पहले वो 300 होता था, दैट्स राउंड अबाउट 28. 95 परसेंटाइल इज राउंड अबाउट 77, which is I believe around about 35% of the paper if I'm not wrong. So for this 77 you would need around about 25 questions. Can you not do 25 questions on 76? ये नीचे जाएगा, probably let's say 68 पे जाएगा, तो यहाँ पे भी नंबर आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा. probably this can become 23, 22. Guys, ये पूरा कैट का मैट्रिक्स है, इसको पकड़ के ही आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा, इससे दूर नहीं जाना है. इसको आपको याद रखना बहुत जरूरी है. अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं, क्वांट्स के लिए बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं. गाइस, ये पूरा का पूरा आपका क्वांट्स है. अरिथमेटिक विल बी राउंड अबाउट 35 to 40%, अलजेब्रा 25%, ज्योमेट्री 15%, मॉडर्न मैथ्स 10%, नंबर सिस्टम 5%. गिव मी एनी 3 कैटेगरीज, गिव मी एनी 3 कैटेगरीज. आई कैन स्टिल टेल यू आई एम अ बिग फैन ऑफ आर्ग स्ट्रैटेजी. मेरा आर्ग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया के कोने कोने में बच्चे फॉलो करते हैं. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स दे बिलीव इन आर्ग कैटेगरी, और वो कहते हैं कि सर अगर हम इतना भी कर लेंगे तो हो जाएगा क्या. ये शॉर्ट चीज़ है, ये आपको हेल्प कर सकता है. इसको याद रखना. 35%, 25%, 15%, इसमें से अगर आप देखोगे राउंड अबाउट तुम्हारा 80% प्लस पेपर यहाँ से ही निकलता है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम हर एक चीज़ करो. देखो, अरिथमेटिक में तुमको प्रॉब्लम होगा, टीएचडी तुम छोड़ सकते हो, तो ऐसा नहीं कि टीएचडी इज दी ओनली अरिथमेटिक. अरिथमेटिक में बाकी के भी टॉपिक्स है, अलजेब्रा में भी कुछ टॉपिक्स है जो आप कर सकते हो, ज्योमेट्री में भी कुछ टॉपिक्स है जो आप कर सकते हो. अगर आपको लगता है कि यू नो व्हाट सर मेरा टीएचडी बहुत अच्छा नहीं है, मैं क्या करूं, यू नो व्हाट, आप पुराने 10 साल के पेपर उठा के देखना. एज फार एज कैट इज कंसर्न, कैट के 10 साल के पेपर उठा के देखो, जितने टीएचडी के सवाल आए थे बेटा सबको लगा लो. जितनी कंसेप्ट के ऊपर वो टीएचडी का क्वेश्चन आया था वो करो. यू विल सी कि सर पिछले 10 साल में ना 5-6 टाइप की कंसेप्ट होती है टीएचडी में, उसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. दिस इज एग्जैक्टली यू हैव टू रेप्लिकेट. मतलब यही चीज आपको करनी है. चांसेस बहुत ज्यादा है कि आपको सेम लेवल पे क्वेश्चन मिलेगा, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इन कैट. Question do not repeat ever, but concept and format do tend to repeat, right, most of the time. ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है. प्रो लेवल पे हो तो कोई लोड ही नहीं है भाई, जो भी आ सकता है आप फोड़ सकते हो. तो थोड़ा यहाँ से करना चालू करो. मॉडर्न मैथ्स इफ यू आर नॉन इंजीनियर, एंड मॉडर्न मैथ्स अगर आपको नहीं आता है छोड़ दो. गाइस, सिंपल सी बात है, जो आता है उसके ऊपर काम करना है, जो नहीं आता है उसको भूल जाना है, राइट. आई विल क्विकली टेल यू द टारगेट स्कोर एज फार एज योर क्वांट्स इज कंसर्न्ड. क्वांट्स में गाइस अगर आप देखोगे, so it is not that a big deal. You just keep your mock का स्कोर aside. एक 10 मिनट के लिए ना आप अपने मॉक का स्कोर अपने जहन से, दिमाग से निकाल दो, and just look out for this matrix. Just look out for this matrix. भाई 24 marks. That's 8 question. 8 question will give you 90 percentile, and that's around about 30 marks. That's 10 question will fetch you 95 percentile. अब ये जो बच्चे जानते हैं ना, वो बड़ा स्मार्टली खेलते हैं ऑन द D-Day. उनको पता है कि यार ये जो मैट्रिक्स है वो फॉलो होगा. 1 or 2 questions
here and there based on level of difficulty। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप इसका टेंशन मत लो। YouTube पे मुझे फॉलो करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना चैनल को, एंड जब भी मेरी वीडियो आए, एक छोटी सी वीडियो हो या फिर 20 मिनट हो, 25 मिनट हो, वो देखते रहना। मेरी गारंटी है आपको वैल्यू एडिशन होगा ही होगा। आप जरूर कुछ ना कुछ नया सीखोगे उस वीडियो से। एंड गाइज, कैट इज मोर ऑफ स्ट्रैटेजी। अब वो दिमाग मत लगाना कि प्रिपेयर करना है स्कूल लेवल प्लान, बिल्कुल भी नहीं। इट्स मोर अबाउट स्ट्रैटेजी, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फाइन, आगे चलेंगे। योर 99 परसेंटाइल इज गोइंग टू बी राउंड अबाउट 15 क्वेश्चन। हाँ, 15 क्वेश्चन कोई भी फोड़ सकता है आराम से, इंजीनियर हो, नॉन इंजीनियर हो। 15 क्वेश्चन फोड़ने का कोई लोड नहीं है। 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक प्लस अलजेब्रा से निकल सकते हैं, या फिर 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक प्लस ज्योमेट्री से निकल सकते हैं, या फिर 15 क्वेश्चन अलजेब्रा प्लस ज्योमेट्री प्लस नंबर से भी निकल सकते हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड योर कंफर्ट जोन, वेयर यू आर गुड एट, राइट? वहां भी खेलना है। सो ये हो गया आपका क्वांट्स का टारगेट। आगे चलेंगे गाइस, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आई ऑलवेज से वर्बल एबिलिटी इज द गेम चेंजर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। आप वर्बल एबिलिटी काम करना चालू करो। यार पैरा जंबल क्यों नहीं होता है, ऑड वन आउट क्यों नहीं होता है, पैरा समरी क्यों नहीं होता है, ये बिल्कुल भी मत सोचना। कुछ लोग कहेंगे यार देयर आर 120 ways to do the पैरा जंबल। पैरा जंबल इज प्रिडोमिनेंटली बेस्ड ऑन ए ग्रामर का रूल्स। गाइस, एक चीज याद रखना, अगर मैं पैरा जंबल को इकट्ठा कर लेता हूँ, 4-5 सेंटेंस को अगर मैं इकट्ठा कर लेता हूँ, ये बन गया मेरा छोटा सा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये बन गया मेरा छोटा सा पैराग्राफ। पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी कैन बी क्रैक्ड प्योरली एंड प्योरली जस्ट बाय यूजिंग ग्रामर का रूल्स। बाकी कोई भी फालतू रूल्स को यूज मत करना, they do not work. I have spoken to a lot of students from so many institutions. Grammar works. Why grammar works? Because grammar is the heart of any language and English is a language, guys. उसी के बेस के ऊपर ये मैंने रूल्स बनाए हैं जो बहुत सही सही वर्क करते हैं। You can join my booster workshop VRC का, जहाँ पे मैंने 7 रूल्स बताए हैं। ये आराम से आपको हेल्प करेगा। यू कैन, इफ यूर NIT IIT, you can get some discount. You're probably SRCC. There is a program S99 percentile. I bet my life कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा। There is no doubt about it. I bet my life कि आपका स्कोर इंप्रूव होगा अगर आप ये प्रोग्राम एक्चुअली सब्सक्राइब करते हो तो। अगेन इट्स अप टू यू, राइट? जस्ट मूव इट। लेट्स टॉक अबाउट पैरा समरी, पैरा जंबल एंड ऑड वन आउट। ये करना ही है हमें। अब हमें ये नहीं सोचना है कि ये मेरा नहीं होता है, मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं होता है? मेरे पास ऐसी क्या चीजें नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ? मेरे जाके फ्री के यूट्यूब के वीडियोस देखो, ये करना ही है। एंड आई एम नॉट सेइंग डू एवरीथिंग। 3 पैरा जंबल आते हैं, एटलीस्ट गेट 2 क्वेश्चंस करेक्ट यार। दीज आर फ्री मार्क्स, these are free marks, there is no negative marking for this। ये टिट्टा है, टाइपिंग द आंसर, नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? सो ये चीजें आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब हम बात करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। गाइस, आपका टारगेट होना चाहिए कि दैट आई शुड बी गेटिंग अराउंड अबाउट 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करेक्ट। हाँ, 2 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस करेक्ट। गाइस, मैंने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, दैट इज कॉल्ड एज हाउ डू यू सिलेक्ट दोज क्वेश्चंस। एक बारी जाके उस वीडियो को देख लेना। द कंटेंट इज फैबुलस, आई एम नॉट किडिंग, द कंटेंट इज एब्सोल्युटली फैबुलस। जाके थोड़ी मेहनत लगाना, थोड़ा देखना कि सर क्या बोल रहे हैं। आई गारंटी यू तुम्हारा 2 से 3 क्वेश्चन मॉक्स में और DDA पे वैसे ही सही आएगा। ज्यादा 2 से 3 क्वेश्चन का आपका इंप्रूवमेंट श्योर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू विल बी प्लेइंग अ लॉट ऑन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आल्सो। जस्ट फॉर द फैक्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 70% आता है, लगे पड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हाँ, अगर आप RC में मोर कंफर्टेबल हो, डेफिनेटली यू प्ले हार्ड ऑन RC, बट for 99th percentile, guys, if you want to be in the toppers club, you will have to do verbal ability. You need any help, I'm your guy. You can get in touch with me, I'll help you with that, right? Moving ahead, verbal ability के बारे में अगर मैं बात करूँ, fact based question always आते हैं। मैंने ये कहा है 50% fact based questions आते हैं। inference based जो questions आते हैं वो करने भी नहीं है। Even to get 99.50, you can leave inference based questions and you can still make it to 99.50. This is completely a part of strategy. If you don't believe, you can go and check CAT 2020 का पेपर्स कि आपका फैक्ट बेस के ऊपर काम बन सकता था। मेन आइडिया जानना बहुत जरूरी है। मेन आइडिया से आप 30% पेपर निकाल सकते हो। यू कैन गो एंड क्रॉस वेरीफाई। दीज आर द प्योर स्ट्रैटेजीज दैट आई एम टेलिंग यू। दिस इज एक्जैक्टली गोना हेल्प यू फॉर द नेक्स्ट 30 odd days, राइट? मूविंग अहेड, अगर मैं बात करूँ आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए or for as far as your verbal ability is concerned, see 11 question is good enough to get you around about 95 percentile. 10 question is good enough to get you around about 90 to 93 percentile. At round about 15 से 16 questions are more than enough out of 26 to get you guys round about 99 plus percentile.
अगर आप राउंड अबाउट 20 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो विद 80% ऑफ द एक्यूरेसी, यू शुड बी एबल टू गेट 99 स्टिल, बट 20 अटेम्प्ट करने के लिए उस लेवल की प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं डीएलआर के बारे में, गाइस हमारे डीएलआर की वर्कशॉप ऑलरेडी चल रही है। दीज आर दी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो मैट्रिक्स वगैरह भी मान लिया होगा, बट दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर इतना भी कर लोगे, आपके 2 सेट्स कहीं नहीं गए। मैं आपको एक बार इसका टारगेट स्कोर दिखाता हूं। राउंड अबाउट अगर आप देखोगे यार, दिस इज 20 का स्कोर, हाँ 20 का स्कोर, 20 का स्कोर मतलब राउंड अबाउट 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन पे बेटा तुम्हारा 90% बन रहा है। व्हाट एल्स यू नीड, राइट? 24, दैट्स राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन। आप देख रहे हो ये जंप, दिस इज कॉल्ड एज 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5%, राइट? डू यू एग्री नाउ? 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 5%। तो ये चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है। आप डीएलआर में एक नॉर्मल परसेप्शन है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप राउंड अबाउट 50% ऑफ द पेपर करते हो तो आपका डीएलआर सॉर्टेड है। सिमरन स्कोर्ड 99.47 या 49% मेरे ख्याल से, एंड शी नेल्ड डीएलआर। उसका इंटरव्यू मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। यू विल नॉट बिलीव गाइस, शी टोल्ड यस्टरडे टू ऑल ऑफ अस दैट फर्स्ट 10 मिनट्स शी पिक्ड अप द सेट, बिकॉज उस सेट में 6 क्वेश्चन थे, एंड देन राउंड अबाउट 10-15 मिनट स्पेंड करने के बाद शी कुड नॉट डू दिस सेट, शी कुड नॉट डू दिस सेट, एंड मोर देन दैट देन शी रियलाइजेस कि यार ये 6 का नहीं, ये 4 क्वेश्चन का सेट है। सो गाइज ये चीजें होने के बाद भी शी नेल्ड 99.47। ये पॉसिबल है प्रोवाइडेड आप सेट सिलेक्शन पे काम करो, राइट? दिस इज गोइंग टू बी योर टारगेट बाय द वे फॉर 99%। यू नीड टू फोकस ऑन क्लोज टू 12%, sorry, close to 12 questions, which is around about 50% of the paper. Moving ahead, to-do list अभी करना क्या है? सिंपल सी बात है, I would need your commitment for the next 7 to 8 hours. बेटा 30 days है, these 30 days can bloody make or break your next 30 years of your life. Mostly it is gonna make you very good as far as your 30 years of life is concerned. Guys, अगले 30 दिन गिव अप नहीं करना है। जो भी है डिमोटिवेशन है, मन नहीं करता है, नर्वसनेस है, fuck that shit, don't even think about it. बस प्रैक्टिकल रहो, अगले 30 दिन मेहनत करो। अगेन, नो न्यू टॉपिक, जितना आता है उतना आता है भाई, नो न्यू टॉपिक। किसी फ्रेंड ने बोला ये कर ले, किसी मेंटर ने बोला ये कर ले। मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो व्हाट हैपेंस, अगर मैं बात करूँ, कुछ जो मेंटर होते हैं उनको यार बेसिकली रीडिंग कॉम्पिटिशन से बहुत प्यार होता है, तो वो आरसी को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। कुछ मेंटर होते हैं जिनको मॉडर्न मैथ्स से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, तो वो मॉडर्न मैथ्स को प्रमोट करते हैं। आप वो वाले फंडे में मत पड़ना, आप देखना कि जेन्युइनली ये इंपॉर्टेंट है क्या। जैसे मैं मॉडर्न मैथ्स का लाइक आई लव मॉडर्न मैथ्स बीइंग अ ट्रेडर, आई लव मॉडर्न मैथ्स, बट आई डू नॉट प्रमोट मॉडर्न मैथ्स बिकॉज आई नो नॉन इंजीनियर का बहुत पंगा होता है मॉडर्न मैथ्स में, सो आई डोंट डू दैट, राइट? अगेन पैसिव मॉक्स आपको देना बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू फेच 99++, पैसिव मॉक्स आर मस्ट। आपको डेली बेसिस पे एक मॉक लगानी है इन अ पैसिव वे, राइट? पैसिव मॉक एक वीडियो देख लेना। वन सेक्शन हैज टू बी स्ट्रांग. This is the most important thing, that you need to make it a point that your one section has to be strong. I'll prove it to you. This is 99.88. This is one of my student Garima. She is in IIM Calcutta right now. अगर आप देखोगे, she did a good job in only one. I mean, this is a great. वैसे देखा जाए तो 94.96 and 96.77. But one section she nailed it. One section she nailed it. ये still possible है. But ये इसके लिए थोड़ा मेहनत लगेगा। I'll give you another example. This is another student of mine. अगर इस बंदे के बारे में अगर हम बात करेंगे, सी यहाँ पे खाली 95 है। अगर डीएलआर के बारे में बात करेंगे, डीएलआर में बंदे ने 90 टच करा, 90 भी नहीं टच करा, एक में 95 टच करा, एक में 90 टच करा, एंड क्वांट्स में बंदे ने फोड़ा 99.18, ओवरऑल इज 98.69 आयब लखनऊ। आगे चलेंगे, दिस इज सिमरन 99.17। मैंने कहा था आपको शी गॉट 94%, 30 का स्कोर था वर्बल में। अगर तुम्हें बात करूँ क्वांट्स में 97.47, 35 का स्कोर था। यहाँ पे 12 क्वेश्चन करेक्ट है, यहाँ पे 10 क्वेश्चन करेक्ट है, यहाँ पे 99.46। वन सेक्शन शी नेल्ड इट, सो यू हैव टू टेक वन सेक्शन above 99 or probably close to 99 should be fine. अब यहाँ पे बात करेंगे तो राउंड अबाउट 38.12 which is 13 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, so this is round about 35 question is what exactly she did, right? 35 is what she did out of 76. This is still doable. So you need to understand that moving ahead, you have to focus on one bloody section, right? Now, it will be like 95, 95, 95, your overall will be 97. Overall will be 97. Even if you are like at 80 and 95, at 90, you will still be close to 94, 95%.
आप कोई भी चीज़ करो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक सेशन को हमें आगे लेके जाना है मतलब 99 प्लस से होना चाहिए। बहुत टाइप के स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, जैसे आपका रिक्वायरमेंट हो, किसी किसी के लिए 95 भी 99 की तरह होगा, राइट? So you decide how good you are with particular section. Let's move ahead. What do we have? So this is what I've showed you the result. आगे चलेंगे। प्रीवियस मॉक्स जितने एनालाइज कर सकते हो उतना करो, नया चीज़ कुछ मत करो। आपका टारगेट होना चाहिए कि आपको वीकली 2 मॉक्स लगाने हैं, उससे ज़्यादा नहीं। पैसिव मॉक पे ज़्यादा फोकस करो। सेक्शन को अच्छा करने के लिए सेक्शनल मॉक्स देना चालू करो। एनालाइज प्रीवियस मॉक्स, जितनी भी मिस्टेक्स करी थी, जितने भी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, ऑलवेज जो गलत करे उसके ऊपर काम करना चालू करो, बिकॉज ये गलतियां नहीं होनी चाहिए। सिली मिस्टेक्स को लिख के रखो, नोट्स बनाओ। हमारा हर टॉपर बच्चा, रादर टॉपर लोगों का नाम एक फंडा होता है कि वो नोट्स बनाते हैं, कंसेप्ट नोट्स, क्लास नोट्स, स्ट्रैटेजी नोट्स, राइट? स्ट्रैटेजी से याद आया गाइज, ऑलवेज रिमेंबर फॉर द नेक्स्ट 30 डेज आपको स्ट्रैटेजी ही हेल्प करेगा। बिकॉज अगर आपने पढ़ाई करी है और अगर आपका स्कोर नहीं आ रहा है, मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ यू, you are good, but there is something wrong with your strategy and the belief system. Belief system मतलब आप क्या believe करते हो, right? So you might have followed a lot of people, offline and online. Now is the time for you to think about strategy, right? So ये strategy का जहाँ तक सवाल है, I will take care of these things. I'm anyway launching my new batch. It's a crash course that we are starting from Wednesday. If you want to join us from this Wednesday, you can join us. I would need your 30 days. What we are currently doing at Seduce Mentors, we are focusing more on DILR. Workshop is already going on. यहाँ पे आप 90 percentile definitely सोच सकते हो. I will be doing VARC के advanced sessions along with strategy. So if you want to join us, you can join us. And same will be applicable for quants. And all these 99 percentiles will be there to help you, to tell you what you should do and what you should not do. From 95 से लेके 99 will scale you up. अगर आप 80-85 में हो, 90 plus लेके जाने के लिए we will help you. If you want to join us, you can call on the numbers given in the description. Then you can still join us. Now, moving ahead, avoid all silly mistakes. Make a note of all those silly mistakes, and you will not be repeating them. Do that promise to yourself, right? Do not worry about your mock score. अभी भी अगर mock का score नहीं आता है, you care a damn about your mock score. The only thing that you need to do going ahead is learn and learn from your mocks. Very simple, right? And most importantly, last but not the least, अगले 30 दिन भाई तुम्हारा टारगेट होना चाहिए कि जो कैट के 9 क्वेश्चन पेपर है, राइट? जो कैट के 9 क्वेश्चन पेपर है, आई एम नॉट सेइंग यू डू 10-15 इयर्स का पेपर, एटलीस्ट डू 9 इयर्स का, नॉट 9 इयर्स, 9 स्लॉट का 9 क्वेश्चन पेपर, एंड यू विल बी 100% रेडी फॉर योर एग्जामिनेशन। ये सब हमने करवाया है, ये सब हम करवाएंगे, ये पेपर्स हम सॉल्व कराएंगे VRC, क्वांट्स एंड DLR के लिए एट Seduce Mentors. If you want to join a crash course, so guys, we have sent more than 1000 students in the IIMs in last 2 years. Seduce is known for its results and Seduce is known for its content. So if you believe in the content, you know what, एक सही strategy, एक सही content can help me to improve my 10 to 15 percentile. अगर आप round about 80-85 percentile पे हो, we are the right place. You can definitely bank on us. On the other hand, let's say they're not been able to score very well, कि सर 95 है, but 99 पे जाने की मेरी इच्छा है, मैं I'm ready to give in everything, right? Then you can go through all my strategies, try to implement them. अगर आप implement करते हो, आपका score पक्का बनेगा. See, we had students when they joined us, they were around about 60 percentile last year in CAT. Currently they are scoring 98 plus percentile. और ये जो difference होता है ना, वो strategy से आता है. पढ़ाई करने के लिए हर एक बच्चा करता है, बहुत सारे बच्चे मेहनत करते हैं, बट आपका जो डेल्टा होता है, आपका जो स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, तो वो एक्चुअली स्ट्रैटेजी से आता है. एंड स्ट्रैटेजी के लिए यू शुड नो कैट वेरी वेल. दैट इज माई जॉब. यू विल फॉलोइंग मी फ्रॉम लास्ट 7-8 months, राइट? आपने मुझे फॉलो वगैरह करा होगा, आपने देखा होगा कि यार ये बंदे की जो स्ट्रैटेजी है वो स्पॉट ऑन है. सो गाइज, नाउ दिस एंटायर 30 days is going to be the game of strategy. You have to design and decide your strategy and stick to it. Wherein I will help you and my toppers will be helping you. I'll be making a lot of videos for the next 30 days. Section by section भी मैं वीडियो बनाऊंगा detailed manner में. So if you're new to my channel, kindly stick around. If you want to subscribe, you can do that. But जितनी चीज़ें मैं अपलोड करता हूँ ना, एक बार उसको देखा करना, because trust me, आपको value addition definitely मिलेगा. अगले 30 दिन भाई कोई आलस नहीं करना है, कोई negative thought नहीं चाहिए. We have come so far, and these 30 days can actually help you to have a great future. Trust me, एक बार वो IIM का tag लग गया ना, your life is done. Even if it's any IIM, Sirmaur ho, Bodh Gaya ho, probably it's a new IIM, or probably let's just say even if not getting into the IIM, but if you're getting into the MICA, MDI Gurgaon, you are set.
you are set, guys. This is exactly what I wanted to tell you, and that's it from my side. Thank you so very much for watching this video. There will be a couple of more videos going ahead, like 99% strategy and all that. So kindly stick around. That's it from my side, guys. Keep hustling, keep working hard. Wish you all the very best. Do well. Bye bye.